Hello class 10th. I hope you all have watched the SOPs. You all have watched the SOPs and the first video of mine. So let's begin. Let's follow the golden rules first. Sit straight, open your notebooks, get your pens uncapped, and of course be honest to yourself and do justice to yourself. This is video number 1 of lecture 3, pair of linear equations in two variables. Okay? जितना बड़ा नाम है ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा चैप्टर है, 2 हफ्ते चलेगा आई गेस. सिलेबस में भी यही लिखा है. सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस व्हाट डज द नेम ऑफ द चैप्टर सेज. ऑलवेज ट्राई टू डिग एज डीप एज पॉसिबल. जितना ज़्यादा आप उसके बारे में किसी भी चीज़ के बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा याद रहेगी, उतना ज़्यादा समझ में आएगा. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ मेंट बाय पेयर. पेयर मीन्स जोड़ा. Of course, two things, a group of two pair of linear equations. So first of all, tell me what is meant by linear with respect to an equation. Yes. Come on, pause the video and try to recall. You all have learned it right in the very last lesson. पिछले chapter का नाम ही polynomials है. So assuming that you all have paused the video और किसी ने बोला भी होगा आंसर, पता नहीं. Be true to yourself. लीनियर का मतलब होता है लीनियर इज द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन. लाइक डिग्री इज क्वाड्रेटिक इज अ डिग्री, क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो सेम वे लीनियर इज अ डिग्री ऑफ एन इक्वेशन और पॉलिनोमियल ऑफ एन जनरल एक्सप्रेशन इज लीनियर. लीनियर मीन्स द डिग्री equals 1 is means by linear. Like degree of an expression, algebraic expression of an algebraic expression is 1, then that expression is said to be linear expression. Expression can be equation, it could be an inequation, or it could be a term, or it could be anything, and general expression. Okay, and what is an equation? Now tell me. अच्छा, assuming कि आप लोगों को अभी कुछ नहीं आता, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है. सो आप मुझे और अपन इंटरैक्ट भी नहीं कर सकते, तो मैं आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करके बता रहा हूँ. तो अभी आप यहाँ पे पहले डिग्री की डेफिनेशन लिखेंगे. ओके, द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज़ द हाइएस्ट, द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज़ द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द इंडिविजुअल टर्म्स in the equation with non-zero coefficients. Highest degree of individual terms with non-zero coefficients. ये आपके लिए एक असाइनमेंट है कि इसका क्या मतलब है. ये आपको व्हाट्सएप नंबर जो है स्कूल का जिसके थ्रू ये वीडियो आ रहा है, आपको इस पर सेंड करना है कि नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट का क्या मतलब है और ये क्यों ज़रूरी है व्हेन वी डिफाइन द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन और एन एक्सप्रेशन. ओके, सो दिस इज डिग्री. फॉर एग्जांपल वी हैव x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0. ठीक है, सो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? विल टेल मी. आपके ऑप्शन इज डिग्री इज़ 1, इट्स डिग्री इज़ 3 और इट्स डिग्री इज़ 0. एंड ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर डी इट्स नॉट डिफाइंड. ठीक है, नॉट डिफाइंड, हमें कुछ नहीं आता. A1 B3 C0 D and D. ओके, यस, द राइट आंसर इज 1. डिग्री का मतलब है इंडिविजुअल टर्म्स की हाईएस्ट पावर. पावर इज डिग्री, डिग्री इन जनरल. सो इट्स डिग्री इज 1, सबकी 1 है. सो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑल्सो 1. Consider another example. We have got x plus 5yz is equal to 2a cube. इसकी डिग्री क्या है? Yes, it is obvious. It is a cubic equation, an cubic equation whose degree is 3. And now you tell me what is the degree of this expression. Plus a plus 16b square c square d cube is equal to 10 z से. Okay, what is the degree of this equation? Fast.
इट इज़ वेरी क्लियर कि जब इंडिविजुअल टर्म्स की हाईएस्ट पावर की बात करें, इसकी 2 आ रही है, इसकी when we'll add the powers we get 4, it's 1, it's 2 plus 2 plus 3, that is 7, and it is 1. So we see that this is the highest power of an expression whose coefficient is non-zero. So this is the degree of this particular equation. Okay, so this is how we define degree. मैंने assume किया है कि आप लोगों को अभी इतना deep में पता नहीं है, so that's why I'm teaching all this. If someone feels bored, so he or she can watch the video on 2x speed or could skip this part. Okay, so now we come to the next part of the name of the lesson, that is equations. ये भी आप लोगों को पता होगा, आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है अभी. So what is an equation? Fast, what is an equation? यार ये भी नहीं आता क्या? क्यों सौम्य? अच्छा आता है, चलो बढ़िया. तो लिखो an equation is a statement that the values of two mathematical expressions is equal. अब इतना ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि दिस चैप्टर इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन का मतलब पता होना चाहिए. और स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट आप लोग हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे. बट स्टेटमेंट इज़ अ लाइन विच इज़ ऑलवेज ट्रू. ठीक है, ऑलवेज ट्रू, विच कैन नॉट बी डिनाइड रॉन्ग. वो अपनी जनरल इंग्लिश वाली स्टेटमेंट नहीं है. दिस इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट. एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट द वैल्यूज ऑफ 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इज ऑलवेज ट्रू. अगेन कंसिडर एन एग्जाम्पल जो अपन ने पहले देखे. दीज आर ऑल इक्वेशंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 2y इज एन इक्वेशन. दिस सेज दैट वैल्यू ऑफ 2 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इज इक्वल. एंड कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, दिस. ओके, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी मैंने आपको डिग्री बताई थी. सो इसकी दिस इक्वेशन की डिग्री इज 2. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड हेयर सो the value of 2 mathematical expressions is equal. So this is an equation of degree 2. So we said it is a quadratic equation. These are basic terminologies you all should know before beginning the chapter. Okay, so this is how we do it. And बाकी सब तो आपको पता ही होगा. एंड अपने जो चैप्टर का नाम है उसमें we have got this term, the variables. वेरी बेसिक, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा आपने, 7th में भी. तो और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सीधा ही बता देता हूँ. वेरिएबल्स एज द नेम ओनली सजेस्ट आर द क्वांटिटीज़ विच आर कंटेक्स्ट टू चेंज. मतलब वो चेंज हो सकती हैं और दे कैन एक्वायर एनी वैल्यू एंड दीज आर नॉट कॉन्स्टेंट्स. इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, दे कैन टेक एनी वैल्यू. ठीक है, सो फार सो गुड. वेरिएबल्स के जो जनरल जेनेरिक नेम्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई जी, और अपने होते हैं ए बी सी. मतलब कुछ भी हो सकते हैं वैसे तो, बाकी बायसनेस नहीं दिखाएंगे. 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, कोई सा भी ले सकते हैं. बट जनरली आपको किसी भी बुक में यही मिलेंगे, या फिर आपको मिलेगा पी क्यू आर. जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ये सारे एक साथ भी आ सकते हैं. ठीक है, तो मतलब इनसे दोस्ती कर लो, अलजेब्रा बहुत ईजी हो जाएगी. दीज आर ऑल वेरिएबल्स एंड व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स whose values are fixed. A 2 is always a 2, but an x can be just x, or x can be defined as pi, or x is a subject to change, is a context to change. That is why it is a variable. Okay, so far we are through with all the terms, and now we can infer that what does the chapter means. That is pair of linear equations in 2 variables. 2 लीनियर इक्वेशंस का जोड़ा अगर हिंदी अनुवाद करें तो, जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं. देखो वेरिएबल्स की स्पेलिंग गलत हो गई, वेरिएबल्स. ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. राइट, यहाँ तक क्लियर है? ऑफ कोर्स नहीं है तो मैसेज कर देना, आई विल मेक यू क्लियर. और इट्स जनरल रिक्वेस्ट कि यू हैव टू सेंड योर डाउट्स, बट पर अगर मगर बट दोज डाउट्स आर लॉजिकल, लाइक दे आर वाइल्ड, लाइक दे आर
क्या बोले, मतलब दे आर लेजिट टू आस्क, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं पूछना है कि भैया ये आपने ऐसे कर दिया, वो वैसे, जो आपको समझ में नहीं आया क्यों का आंसर पूछना है आपको, कैसे का आंसर आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई क्वेरी हो जनरल, कोई और चीज़ कॉन्सेप्ट, तब आप पूछना, ऐसे कोई फालतू टाइप के डाउट्स नहीं, भैया आपने क्या लिखा है वहाँ पे, ये कैसे हुआ। थोड़ा आप वीडियो को दोबारा देखेंगे आपको सब समझ में आएगा। बट इफ़ यू हैव सम अदर डाउट्स रिगार्डिंग क्वेश्चंस एंड एनीथिंग एंड कॉन्सेप्ट्स, those doubts are most welcome. You can send your doubts to the school's WhatsApp number through which you would be receiving this video. Okay, so let's continue. I was explaining you the meaning of the lesson, that is pair of linear equations and two variables. दो linear equations जो कि दो variables में defined है, उनका pair is pair of linear equations, linear equations. So far so good. Now we have general form of an equation. ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा। फास्ट चलो, कौन बताएगा? कोई नहीं, ओके। जनरल फॉर्म एन इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स and A and B are non-zero but constants. A and B are non-zero constants. Okay, so this is your assignment 2, that you have to tell me that why are they non-zero assignments. ठीक है, ये भी आपको मुझे अपने असाइनमेंट में बताना है कि वाई आर ए एंड बी नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट्स। और मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बोली है कि आपको यू हैव टू टेल दैट वाई इन अ हाईएस्ट डिग्री द कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म दिस टू हैज़ टू बी नॉन ज़ीरो। ओके, ये दोनों चीज़ें आप एक एक लाइन के आंसर ही ऐसे मत लिख के भेज देना। यू हैव टू टेल मी इन योर व्हाट्सएप, थ्रू व्हाट्सएप, कि वाई आर दीज नॉन ज़ीरोज़। ओके, थिंक ओवर इट, गूगल मत कर देना, नहीं मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, सो वेयर ए एंड बी आर नॉन ज़ीरोज़ बट कॉन्स्टेंट्स। समझ में आया यहाँ तक? दिस इज़ जनरल फॉर्म। ये आपने पहले भी पढ़ा है क्लास 9th में, मना मत करना, मैं अभी पढ़ा कर आया हूँ। सो नाउ द थिंग कम्स इज कि हमने ये तो पता कर लिया कि भाई हमें क्या पढ़ना है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाई आर वी स्टडिंग दिस। तो हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस को टैकल करने के लिए वी आर स्टडिंग दिस। कंसिडर तनिष्क, नो ऑफेंस इफ आई टेक द नेम्स, ओके। तनिष्क गोज टू अ स्टेशनरी शॉप। कंसिडर, जाता तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, मम्मी को बोल देता होगा मम्मी ये ले आना, बट कंसिडर कर देते हैं कि जाता है। एंड ही गोज देयर एंड सेज स्टेशनर वॉट एवर दैट इज शॉपकीपर कि भैया गिव मी 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स, एंड द शॉपकीपर टेल्स हिम दैट दिस कॉस्ट्स रुपीज़ वी से सपोज 19. Okay, so to represent this mathematically we have the pair of linear equations, or we use algebra. So we can denote pens by x and pencils by y. So we get, in the real life equation is 2x plus 3y equals rupees 19, or just 19. So this is why we need an equation. And suppose we need to find that what cost him a pen. x की वैल्यू क्या है, यानी कि एक पेन की वैल्यू कितनी थी और एक पेंसिल की वैल्यू कितनी थी कि उसका टोटल बिल ₹19 बना। सपोज कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 5, यानी कि एक पेन उसको 5 रुपीज़ का पड़ा, एंड y इज इक्वल टू हाउ मच, 3. सो इज दिस 19? yes, 9 and 10, 19. So we say that these are the cost of a pen and a pencil, and this implies that 5, 3 or x, y is the solution of the equation. तो ऐसे ही solutions को find करने के लिए real life ऐसे और भी problems आएंगे, अपन chapter में आगे देखेंगे। तो इन real life situations को tackle करने के लिए we have discovered or we have invented a way of mathematical tractability, that is linear equations or equations generally, basically. So these are why we need equations, where 5, 3 or any value of x and y or variables which satisfy the equation is called as a solution to that equation.
थोड़ी राइटिंग ऐसी आ रही है बिकॉज आई एम फोकसिंग एट 2 different things at the same time, so forgive me for that. Where x and y are solution to the equation. Okay, a solution is a quantity or x and y or the values of x and y for which they satisfy the equation. यहाँ पे 5 और 3 ने satisfy कर दिया, that is LHS became equal to RHS. Then we called those x and y as the solution to that equation. Okay, and later in this chapter we'll discover that each solution to an equation is a point on the line that is represented by that equation. Okay, so this would be the topic for our next class, the graphical interpretation of linear equations and a pair of linear equations in 2 variables. So until next time, bye bye. Okay, wait, not bye bye. First of all, take some more assignment. GNENT. ओके, दिस इज़ असाइनमेंट, जो भी है स्पेलिंग, चेक इट. आपको आज के जो नोट्स हैं वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बनाए हैं, मतलब आपको वीडियो देखते देखते रिटन नोट्स बनाने हैं और उसका PDF भेजना है, PDF फॉर्मेट ओनली. ठीक है, फ़ोटोज़ खींच के मत भेजना. यू हैव टू सेंड द PDF ऑफ दैट टू द व्हाट्सएप ग्रुप because I should get sureness that you are all writing it. Or if you are not able to make notes through the video lectures, I will be sending you my handmade notes. So through that you have to copy them in your notebook, and you have to send its PDF. I am repeating it again and again. Its PDF to the WhatsApp number. Okay. The next is you have to revise all the basic terminologies. Revise basic terms or terminologies of the polynomial chapters. क्योंकि I just realized कि मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया होगा हर चीज़ के बारे में. सो जस्ट, या फिर आपको होगा भी तो आप भूल गए होंगे आई गेस. तो यू जस्ट गो बैक एंड रिवाइज ऑल दोज टर्म्स एंड सो दैट यू कैन गेट मच मोर बिगर पिक्चर ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, और जो आपको क्लास में असाइनमेंट्स दिए हैं, यू हैव टू डू देम. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय.